Hi, good morning everyone. You all are welcome to my YouTube channel, Gyan Guru of Computer Learning. My dear students, as per your request, I am going to design a video for class 8 of binary number system because your requests are vital for me. आप सभी ने रिक्वेस्ट किया है कि सर बाइनरी नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन, बाइनरी नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम से कन्वर्जन कैसे करते हैं, इन सबों का आप हमारे लिए वीडियो भेजिए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डेडिकेटेड टू यू, आई एम डिवोटेड टू यू. ओके, this Gyan Guru channel is 100% available for your request, and I feel fortunate that you show your deep faith and trust on Gyan Guru channel. Okay, so this video is for class 8. I am going to illustrate each and everything of your second chapter, that is your binary number. Okay, your second chapter name is what? Binary number. Clear? And mostly Kangan has requested me this video, sir please upload a video of binary number system. Sir, I have missed your online streaming. Okay, no problem. For online streaming you can also join my classes and you can call me 9006289994. Okay my dear students, welcome to binary number world. Okay, so you are requested not to watch this video only as a you film. Okay, just pause it and prepare a note for it. So come to the point, and the point is that binary number. What do you mean by binary number? The binary number system, it uses two digits only. Okay, bi means two. Bi means what? Two. Okay, so it uses only two digits. A number system, you can say a number system that uses only two digits, that is 0 and 1 is called binary number system. Is called binary number system. Okay, is called binary number or binary number system. No problem man, कोई problem नहीं है. Okay, is called binary number, you can say simply, no problem. It is also known as what? You can also say it is also known as, it is also, sorry, it is also known as machine language, right? It is also known as machine language. Because क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है मशीन लैंग्वेज इसे? कोई बता सकते हैं कंगन? नो? ओके 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 आशुतोष, या आई नो यू कैन टेल. ओके नो प्रॉब्लम, अभिषेक लिसन टू मी. It is also known as machine language because CPU processes data in the form of bits. क्लियर? सीपीयू जिसे आप कहते हैं कंप्यूटर, वो आपके डेटा के प्रोसेसिंग किस फॉर्म में करता है? वो बिट्स के फॉर्म में करता है. क्लियर? किसके फॉर्म में करता है? बिट्स के फॉर्म में करता है. ओके क्लियर? बिट्स के फॉर्म में करता है. आई मीन बिट्स का मतलब बाइनरी डिजिट्स. बिट्स मीन्स व्हाट? बाइनरी डिजिट्स. और इसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं हम लोग. क्लियर है? क्लियर है ना? ओके अब चलिए हम लोग इसमें बात करते हैं नंबर सिस्टम. ओके so there are four kinds of number system that are interpreted using CPU. Okay, so types of number system. Clear?
Types of number system. Number system 1 is what? Binary number system. Number system number 2, octal number system. Number 3, decimal number system. And number 4, hexadecimal number system. Hexadecimal number system. Okay, so we are most familiar with the word what? We are most familiar with the word डेसिमल नंबर सिस्टम. हम लोग जिस नंबर सिस्टम में काम करते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम. अब ये हमारे 4 तरह के नंबर सिस्टम जो है हम लोग सीपीयू आर्किटेक्चर में पढ़ाई करते हैं. क्लियर है? अब सीपीयू आर्किटेक्चर को समझने के लिए हम लोग इस 4 नंबर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, और चारों का हम लोग अध्ययन करेंगे बारी बारी से. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हम लोगों को. ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया क्या? बाइनरी नंबर सिस्टम. दूसरा क्या बताया आपको मैंने? दूसरा बताया ऑक्टल नंबर सिस्टम. और तीसरा क्या बताया? डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका हम लोग यूज़ खूब करते हैं. हम लोग अपने डेली लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं. और चौथा क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. दीज आर 4 काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैं. तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में ये 4 तरह के नंबर सिस्टम का अध्ययन करते हैं. ठीक है, अब हम लोग ये सीखेंगे कि कन्वर्जन सीखने से पहले हम लोग को एक टर्म है जिसका नाम है बेस. राइट, बेस. और इसका दूसरा नाम होता है रेडिक्स. बेस और रेडिक्स किसे कहते हैं? कोई बता सकते हैं? बेस और रेडिक्स. कैन एनीवन कंफर्म मी प्लीज? बेस और रेडिक्स, व्हाट इज दिस? वेरी सिंपल टर्म्स. मैंने कहा ना ये बहुत सिंपल है भाई. आप सभी आदमी अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं. क्लियर? क्या है ये बेस और रेडिक्स? द नंबर ऑफ digits, right, used in any number system. Clear? The number of digits used in any number system is called what? It's called its base और रेडिक्स. क्लियर है? तो इस तरह से जो हमारे पास जो नंबर सिस्टम है उसका बेस जानना जरूरी है ना? चलिए आते जानते हैं हम लोग इसको. ठीक है, तो पहले हम लोग कहेंगे नंबर सिस्टम. ओके, दूसरा मैं कह दूं आपको नंबर ऑफ या डिजिट्स. और नॉट ओनली से डिजिट्स. ओके, डिजिट्स कौन कौन से यूज करते हैं और इसका बेस कितना होता है. क्लियर है? तो पहली बात मैं अगर करूं कि भाई ये है हमारा BNS का मतलब समझ में आया? नहीं आया ना? इसमें हम लोग 2 ही डिजिट यूज करते हैं. कौन कौन? 0 एंड 1. BNS का मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम है. सिंपल है भाई, है ना? तो 2 डिजिट हुआ तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 2 हो गया. क्लियर है? अब कहता है कि भाई हमारा दूसरा नंबर सिस्टम कौन सा है? दूसरा नंबर सिस्टम है हमारा जिसका नाम होता है कौन सा? ONS. क्लियर है? ऑक्टल नंबर सिस्टम. ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम. ओके, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो हम लोग डिजिट्स यूज करते हैं 0 2 7. हो गया? 0 2 7 का मतलब क्या होगा? 0 to 7 का मतलब होगा 8. ठीक है,
0 to 7 का मतलब क्या होगा, 8 डिजिट। तो इसलिए काउंटिंग करेंगे 0 से लेकर 7 तक, तो कितना हो जाएगा 8। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये 8 इसका बेस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौन सा, डेसिमल नंबर सिस्टम, डीएनएस। क्लियर, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोग यूज करते हैं वो क्या है हमारा, 0 to 9। क्लियर, 0 to 9 इक्वल टू 10। ठीक है, अब 0 to 9 को अगर 10 काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10। ठीक है, मतलब उसमें टोटल क्या होते हैं भाई, उसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, 10 होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर, so hexadecimal number system is what, hexadecimal number system means क्या हो गया आपका भाई, means टोटल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना यूज करेंगे आशुतोष, 0 to 9, टोटल ये 10 हो गया, एंड A to F। क्लियर है, 0 to 9 A to F, टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ओके, अब इसको हम देखते हैं कि भाई A to F का मतलब क्या है, वो आपको मैं बताता हूँ। वेरी सिंपल, जहाँ पे आप कहेंगे A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 11, C इक्वल टू 12, D इक्वल टू 13, E equal to 14, and F equal to 15। क्लियर है, one thing must be noted here, one thing must be noted here, what is that, the number of digits used in any number system is one less than what, its base। अगर मैंने कहा कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग 2 डिजिट यूज करते हैं तो डिजिट्स कहाँ तक यूज होंगे, 1 तक ही यूज होंगे। अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में मैंने कहा कि 8 डिजिट यूज करते हैं तो डिजिट्स कहाँ तक यूज होंगे, 0 to 7 होंगे, क्योंकि काउंटिंग हम 0 से शुरू कर रहे हैं ना। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होगा, तो डेफिनेटली ये हमारा क्या हो जाएगा कि एक जो डिजिट्स होगा, जो डिजिट्स हम यूज करेंगे वो 1 लेस देन इट्स बेस। क्लियर है, अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होगा, 7 डिजिट यूज करेंगे। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो 9 तक डिजिट यूज होगा। अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है 16 बेस होता है लेकिन डिजिट्स कितने यूज होंगे, 15। क्लियर है, तो इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर, तो मैं समझता हूँ कि नंबर सिस्टम इज द प्ले ऑफ नंबर्स, ओके, एंड नथिंग एल्स। ओके, ये क्या है, सिर्फ संख्याओं का खेल है सिर्फ, है ना। अब एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में मुझे कन्वर्ट करना है। क्लियर है, तो आइए हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं। वेरी गुड, वेरी सिंपल। ठीक है, तो कन्वर्जन, नाउ योर टॉपिक्स विल बी व्हाट, conversion। what do you mean by conversion? Conversion means transformation of one number system into another number system, right? Okay, look at here, transformation of one number system into another number system is called what, conversion। क्लियर है, कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, रूपांतरण, फॉर्म को, एक फॉर्म को, नंबर सिस्टम को दूसरे फॉर्म में चेंज करना। वैल्यू चेंज नहीं होगा, बी क्लियर अबाउट इट, फॉर्म सिर्फ चेंज होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग कन्वर्जन कहते हैं। क्लियर है,
अब कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, है ना, बहुत सारे रूल्स में से हम लोग को 2 रूल ही पढ़ना है, ठीक है। एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट कैसे करें, क्लियर है। तो चलिए पहला पॉइंट मेरा है वो क्या है कि हम लोग किस नंबर सिस्टम से फैमिलियर है, हम लोग जिस नंबर सिस्टम से फैमिलियर है उस नंबर सिस्टम का नाम क्या है, आपको पता है, उसका नाम है डेसिमल। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये तो मेरे लिए फैमिलियर है ना, और जब फैमिलियर है तो हम लोग डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, हम लोग इससे दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला मेरा पॉइंट ऑफ कन्वर्जन है डेसिमल डेसिमल टू डेसिमल टू बाइनरी, क्लियर है। आई मीन आपके पास अगर डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, क्लियर है, तो आप उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्लियर। आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है तो आप उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्लियर। चलिए, तो पहला पॉइंट है हमारा। अब इसे करने का 2 तरीका है, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करने का 2 तरीका है, क्लियर है। पहला क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं मेथड फर्स्ट, ठीक है। क्या है मेथड 1, व्हाट इज मेथड 1? Method 1 says you have to just follow a number line. You have to just follow a number pattern. Just follow, just follow a number pattern. Okay. And what is that number pattern? Just follow a number pattern. Clear है? And we are going to just watch the number. What is that number pattern? वो number pattern क्या है जिसे हम लोगों को follow करना है, किसके लिए, तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, नाउ लुक एट seriously here. I'm just going to explain you. Suppose you have to start, okay, you have to start your number from right to left, okay, or left to right. You can move any direction, no problem is there. आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं, और मूव करने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नंबर पैटर्न फॉलो करना है। वो नंबर पैटर्न क्या है हमारा, ठीक है। तो सपोज 128 का आधा करिए, कितना होगा, 64 होगा। उसका आधा करिए 32 होगा, उसका आधा करिए, तो कितना होगा, 32 का आधा भाई 16, क्लियर ना। 16 का आधा क्या हो, 8, इसका हाफ करो 4, इसका हाफ करो 2, और इसका हाफ करो 1। अभी तो मैं ये कर्सर को लेफ्ट टू राइट लिख रहा था, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा था, ठीक है। तो अब आपको क्या लगा कि हम राइट टू क्या कर रहे हैं भाई, मैं आपको राइट टू लेफ्ट ही लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मैं आपको एरो दे देता हूँ और ये आगे की तरफ एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, क्लियर। तो ये राइट टू लेफ्ट शुरू करना है, क्लियर। कैसे शुरू करना है हम लोग को, राइट टू लेफ्ट, जस्ट आई एम शोइंग यू इट थ्रू एन एरो, क्लियर है। मैं आपको एक एरो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग जो नंबर पैटर्न यहाँ पे जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये किधर से फॉलो करना है, हमें हमें ये फॉलो करना है किधर से, यस, हमें इसे फॉलो करना है राइट टू लेफ्ट, क्लियर, राइट टू लेफ्ट, ठीक। अब राइट टू लेफ्ट करने का मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि हमें राइट साइड में कितना से शुरू करना है, हमें राइट साइड में शुरू करना है इसे 1 से, ठीक है, और और ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, क्योंकि इसके ऊपर डबल करते चले जाएंगे हम लोग, है ना। इसको डबल करेंगे तो कहीं भी क्या होगा, इसका अंत नहीं है हमारे पास, ठीक है। इस क्या होगा, इसका कोई अंत नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो जब कोई इसका अंत नहीं है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो हाउ कैन आई एक्सप्रेस इट, ओके। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग, it can be expressed using what, it can be expressed using ray. And what is the definition of ray? आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि रे का डेफिनेशन क्या होता है भाई। रे का डेफिनेशन कहता है, क्या कहता है, रे का डेफिनेशन कहता है इट हैज वन फिक्स्ड पॉइंट, वन इन पॉइंट कहता है ना। तो
उसी तरह से देखिए यहाँ पे 1 है क्या, एक एंड पॉइंट है, लेकिन राइट टू लेफ्ट ये कहाँ तक जाएगा, कोई प्रेडिक्शन नहीं है इसका, और हमें जाने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें जस्ट इसी नंबर को क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, अब सपोज करिए मैंने कह दिया कि भाई 25 का बाइनरी निकाल, क्लियर है, क्या कह दिया, 25 की बाइनरी। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन ऑल्सो अटेंड इट, नो प्रॉब्लम मैन। आप सभी आदमी देख सकते हैं यहाँ पे 25 मेरे लिए है और 25 का मुझे बाइनरी निकालना है। ठीक है, तो 25 अब करना क्या है कि हम लोग को ये देखना है कि 25 को आपको अपने मर्जी से कोई नंबर सेलेक्ट नहीं करना है। आपको जो नंबर सीरीज दिया गया है, अगर आवश्यकता पड़े तो आप 128 का दोगुना कर लीजिए, 256 हो जाएगा, उसका दोगुना कर लीजिए, 512 हो जाएगा, उसका दोगुना कर लीजिए, 1024 हो जाएगा, उसका दोगुना कर लीजिए, 3048 हो जाएगा आपका। इस तरह से आप नंबर के सीक्वेंस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई नंबर अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसमें आप देखेंगे कि 25 को अचीव करने के लिए, 25 को अचीव करने के लिए आप इसमें से किस किस नंबर को जोड़ेंगे, तो डेफिनेटली आप 16 को जोड़ेंगे। ठीक है, 16 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, 16 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24, और इसकी आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं क्योंकि मुझे 25 चाहिए, है ना, लेकिन अब 1 की आवश्यकता तो पड़ेगी, आपको पड़ेगी ना भाई। तो जब 1 की आवश्यकता पड़ेगी तो डेफिनेटली हमें 1 की जगह पे भी क्या करना होगा, क्या करना होगा, 1 डालना पड़ेगा, है ना। आई मीन जिस जिस नंबर की रिक्वायरमेंट हुई, क्लियर, नॉट क्लियर, मैंने क्या कहा, जिस जिस नंबर की रिक्वायरमेंट हुई उस नंबर के सामने क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। ठीक है, और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई वहाँ पे हम 0 डाल देंगे, है ना। हो गया मेरा बाइनरी, इसका इसका बाइनरी भाई, ये 25 का बाइनरी हो गया। तो वेरी सिंपल ना। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि ये जो नंबर सिस्टम दिया गया है ये डेसिमल में है, क्लियर है, इसमें है, डेसिमल में है, और इसका बाइनरी कितना निकल गया भाई, और इसका बाइनरी तो आपके सामने है, इसका बाइनरी ये निकल गया। अब डेसिमल टू बाइनरी हमको जाना है, प्रोसेस करना है, तो इसी तरह से प्रोसेस करना है ना, सिंपल। मैंने कहा था ना, बहुत सिंपल मेथड है। ठीक है, एक और हो जाए, ओके नो प्रॉब्लम, एक और टेस्ट कर लेते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, 37 की बाइनरी निकालनी है। ओके, वेरी सिंपल, व्हाट इज माई नंबर इज 37, क्लियर। और 37 की मुझे बाइनरी निकालनी है, तो मैंने क्या कहा आपको, जिस जिस नंबर की रिक्वायरमेंट होगी 37 को अचीव करने के लिए वहाँ पे क्या डालना है, 1। अब मुझे लगता है कि 37 के जस्ट पहले कौन सा नंबर है, 30, जो नंबर सीरीज में दिया गया है। तो एक नंबर क्या चाहिए मुझे, 32 चाहिए, और 32 में अब कितना जोड़े, ठीक है, 32 ध्यान से देखें, और कितना जोड़े कि 37 हो जाए, डेफिनेटली 5, है ना। तो 4 चाहिए तो 36 हो गया ना, और क्या चाहिए, 1 चाहिए, क्लियर। अब देखिए ये किसका हो गया, अब हमें जो बाइनरी नंबर निकालने हैं, है ना, इसका ध्यान से देखें, ये किसका है, 37, क्लियर, निकल गया। तो क्या निकला भाई, 1 0 0 1 0 1 0 1, क्लियर है। तो ये 37 का हमारा बाइनरी निकल गया, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। ओके, so this is the first way by which you can convert decimal number system into binary number system. Any doubt, any doubt, no doubt, clear. Okay, now let's come to the second point, and the point is what, method second, clear, method second, come to the point, method second. What does method second say, it says, some rules. Okay, rules, this is called rules, rules. Okay, so rules, method second, has certain rules, and what is that rules, this utilizes, method second, it uses division method, it uses what, division method, clear, it uses division method। second method क्या कहता है,
सेकेंड मेथड कहता है कि भाई हम डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, आपको एक मैं और बात बता दूँ कि ऊपर जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया नंबर लाइन को फॉलो करके जो मैंने किया, ये सिर्फ इंटीजर के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर किसी ने आपको कह दिया 1.5 का वैल्यू बताइए तो हम नहीं बता सकते। क्लियर है? अगर किसी ने कह दिया कि 1.5 का वैल्यू बताइए तो हम नहीं बता सकते। तो इसके लिए एक रामबाण दबाव है ना, और कुछ रामबाण दबाव का नाम क्या है भाई आपका? वो है आपका डिविजन मेथड। ठीक है, नंबर चाहे कोई भी हो, वो फ्रैक्शनल नंबर हो या इंटीजर नंबर हो, चुटकी में उसको सॉल्व करता है। ठीक है, और यूँ देखिए, आपको मैं यूँ बताता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका पहला, क्या मैंने बताया, इट यूजेस डिवीजन मेथड, है ना। आप लोग को बचपन में तो डिवीजन सिखाया गया होगा ना भाई, है ना। और ये डिवीजन क्या है, आपको बचपन से आता है। मैंने क्या कहा कि आपको नहीं आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है इट यूजेस डिवीजन मेथड। ओके, इसमें दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ओके, डिवाइड divide the destination base, divide the given number, sorry, divide the given number by destination base. ओके, मतलब क्या हुआ कि अभी आप डेसिमल नंबर सिस्टम में हैं तो हैं। ठीक है, अब कहता है कि अगर आपको जिस नंबर सिस्टम में जाना हो, उस नंबर सिस्टम के, इससे डिवाइड करेंगे, इसे उस नंबर सिस्टम के बेस से डिवाइड करना है। क्लियर? हाँ, कर दूंगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और मेथड नंबर क्या कहता है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? डेस्टिनेशन बेस राइट the remainders so obtained, write the remainders so obtained from bottom to top। क्लियर है? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर जो आप रिमाइंडर आपके पास आ रहे हैं, उस रिमाइंडर को कैसे लिखना है ना, उस रिमाइंडर को ऐसे लिखना है कि बॉटम से टॉप की तरफ उल्टी दिशा में लिखनी है। हो गया? चलिए करके देखते हैं, एग्जाम्पल हो जाए। ठीक है, बहुत सिंपल स्टेप्स है। ओके, एग्जाम्पल, ओ माय गॉड, एग्जाम्पल वेरी सिंपल। ओके, नाउ लेट अस सी, आई हैव a question, same question, convert 25 into binary number system। क्लियर है? सो नंबर क्या आएगा मैं नहीं जानता, बट इसका बेस मुझे पता है। कितना पता है? इसका बेस मुझे पता है कि इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है? बेस को हम लोग नीचे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिस तरह वाटर का फॉर्मूला आप रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह से यहाँ। चलिए, 2 को जिस तरह रिप्रेजेंट करते हैं नीचे की तरफ, वो यहाँ भी करेंगे। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट? ओके, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि हमें 25 को ही कन्वर्ट करना है डिवीजन मेथड से। क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, हम लोग को सॉल्व करने में सुविधा होगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें मुझे जाना कहाँ पे, मुझे जाना बाइनरी में, और बाइनरी का डेस्टिनेशन बेस कितना होता है, 2। डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, जहाँ आपको जाना है, और 2 से टेक्स्ट को डिवाइड करना है, 25 को डिवाइड करना है, 2 से 25 को डिवाइड करना है। क्लियर? ओके, कर दिया। एक लाइन और आपको ड्रा करनी पड़ेगी, वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पे, तो अब इस लाइन को हम लोग कैसे फिल करेंगे देखिए, अभी मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, लेकिन नहीं समझने वालों के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है। ओके, ओके, नाउ अब उस इसको डिवाइड करना है ना, टू से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे क्या आएगा, 12 होगा ना। 12 नीचे लिख दिया, लेकिन 12 लिखने के बाद आप देखेंगे क्या, 12 लिखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे
क्या देख रहे हैं कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बच जाएगा ना भाई। एग्जैक्टली डिवाइड तो नहीं होगा ना, फ्रैक्शन में जाकर डिवाइड नहीं करना, बी क्लियर अबाउट इट। फ्रैक्शन में जाकर कभी भी डिवाइड नहीं करना है, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए, मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, अब क्या करना है, फिर से 2 से डिवाइड करना है। ओह माय गॉड, क्या करना है, 2 से फिर से डिवाइड करना है। कब तक, जब तक आप 2 से कम डिजिट आपके सामने नहीं आ जाता है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 6। कितना आएगा, 6 आएगा, 6 टू 12। रिमाइंडर कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, है ना। तो रिमाइंडर नहीं बचा तो यहाँ पे डाल दीजिए 0, हो गया, और बन जाइए हीरो। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, एंड माय पॉइंट इज दैट हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई यहाँ पे आपने फिर से डिवाइड कर दिया, अभी क्या है 6, फिर से कितना से डिवाइड करना है इसे, इसे फिर 2 से डिवाइड करना है। क्लियर, क्यों 2 से डिवाइड करना भाई, ये डेस्टिनेशन बेस है मेरा इसलिए कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ से आने के बाद क्या होगा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कुछ बचेगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। तो फिर से क्या करें हम लोग, नहीं बचेगा तो 0 कर देते हैं। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट व्हाट इज दैट, अभी 3 है, फिर क्या करना है, 2 से मुझे डिवाइड करना है ना। ओके, 2 से डिवाइड करना है तो कर दीजिए, लेकिन 1 टाइम में डिवीजन होगा ना, ये तो पता है आपको ना। ओके, 1 टाइम में डिवीजन हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, हो तो गया, है ना। अब देखिए यहाँ ध्यान से, आपके पास ये रिमाइंडर हो गया, ये क्लियर है। इस तरह से अब 2 से डिवीजन होगा क्या, नहीं होगा, तो नहीं होगा तो हम भी रुक जाते हैं, नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल। और यहाँ से देखिए, मैंने क्या बताया था कि इस तरह से जो आपको रिमाइंडर्स प्राप्त हुआ, ठीक है, इसे क्या करना है, इसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। और नाउ कम टू द पॉइंट, इस तरह से देखेंगे आप तो अब क्या हो गया, इसका बाइनरी निकल गया आपका, है ना। देखिए 110001, ठीक है। तो ये सेम है क्या, जो पहले वाले हमने निकाला था, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने निकाला था नंबर लाइन से, और यहाँ मैंने निकाला किससे, डिवीजन मेथड से, दोनों सेम है। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, करेक्ट हो गया, ठीक है। ओके, सो you will get notification once you subscribe my channel. Okay, I'm not interested that to increase the number of viewers here. Okay, if you are getting to subscribe my channel, then you will get sequentially serial number of your chapter videos. Okay, understood। सभी आदमी इसको, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन ये आपके लिए यूजफुल तभी साबित होगा जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और कंटिन्यूसली इसका वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप भी कॉल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव नाइस डे।